नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज हम थोड़ा योग को इस तरीके से देखेंगे कि कैसे आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, अगर आप ऑफिस में हैं तब भी आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो यू कैन फॉलो थ्रू होल वीडियो। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। अगर आप करंटली ऑफिस में हैं तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने अलग अलग टिप्स भी दिए हैं हाउ वी कैन यूज योगा इन अ सेटिंग where you are with a lot of people। तो अगर हम समझते हैं योग को सही तरीके से, then we know that yoga is not just about आसन या movement या physical exercise, but it is a lot. In fact, it is all about जिसे हम कहते हैं meditation या योग या clarity, to be able to see things as that is। तो उसको उस चीज को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटल कंट्रोल, राइट। या फिर जैसे कहते हैं ना, वो रोजी चश्मा जब हम हटा देते हैं तो हमें सच्चाई जो है वैसे ही दिखे। हमारे परसेप्शन से हमें चीजें गलत जो हमें लगता है वैसे ना होकर, जो सच्चाई जो है जैसी है हमें वैसी ही दिखे, उसी को योग कहते हैं। और उसके लिए हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो अगर आप ये सही तरीके से समझते हैं, then you will know that you can do and practice this at any point of time and in different ways, and definitely not through just yoga asana or whatever that is, right? So first of all, I think the first thing that anyone should do and is recommended that must be done is meditation, right? But that is a later stage to that of concentration or dharana। तो अगर आपको धारणा प्रैक्टिस करना है, अगर आपको मेडिटेशन ध्यान में जाना है, तो उसके बेस्ट तरीके यही हैं जो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया ही है कि आप कैसे कर सकते हैं। When you are doing something, you have to be completely present there. Instead of doing 100 things together, focusing on one thing will not just save your time, will not make it just perfectly productive and efficient, but also rather give you more time। और ये जो practice होता है हमारा concentration का, focus का, it is like a muscle that you will be building, because of which आपका जो ध्यान है वो और better हो सकता है। So in that case, whenever you're doing anything, complete it first. Be committed to what you are doing, complete it on time, and only then move on to anything else। तो इस तरीके से जब आप कोई भी चीज समय पे खत्म कर पाते हैं, आप committed होते हैं, determined होते हैं कि आपको पहले वही काम खत्म करना है और फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये आपकी ऑलरेडी एक धारणा का प्रैक्टिस है, कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस है, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस चीज पे अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा प्रेजेंस आप उस पे लगा पा रहे हैं। इससे बेटर कोई चीज नहीं है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, ऑब्वियसली आप बैठ सकते हैं फिजिकली मेडिटेशन पे, अगर आपके पास कहीं जगह है, समय है। बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इफ यू वांट टू सिट इन मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, focusing on something external or internal, like the points that we have given, if you wish to do that, it is important that you are in a space which is supportive. So you should be in a quiet space. Obviously, if you're doing any japa, any mantra meditation or repetition, you should have asana, and it is recommended, it should be done in a place where you do it every day, right? So it may not be a place where you are working, it may not be a corporate space, it may not be your office, right? तो in that case आप ऐसे कोई भी चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसी कोई छोटी सी मेडिटेटिव प्रैक्टिस ली wherein you just have to focus on your breath। तो आप बस अपने ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं, या आप किसी भी फोकस पॉइंट, हार्ट सेंटर, आईब्रो, थर्ड आई सेंटर पे भी फोकस कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू काम डाउन एंड कंट्रोल योर माइंड। सो दैट इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। इट इज अ वेरी गुड practice। You can obviously do it anywhere, but not to see it as a meditation, but as a practice which will help you calm down and bring your attention back in the present। That will be very useful। है ये योगा का पार्टी, तो आप ये भी कर सकते हैं आप जहां भी हैं। Obviously जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, you have to make sure that you don't have any disturbances, or you can be in that quiet space for that point of time। इसके अलावा प्राणायाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सही जगह ही हो। डेफिनेटली वो क्वाइट, अकेली, प्रॉपर जगह होनी चाहिए। आप ऐसी कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट सही होना चाहिए। पर जो आपके प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, तो जब भी हम कॉर्पोरेट में हैं, कोई स्ट्रेस है, कोई काम है, जनरली आपकी जो राइट नॉस्ट्रल है वो बहुत एक्टिव होगी।
in that case, if you want to balance it, or if you want to activate your calming side, or you want to calm down, you want to de-stress, you want to relax, then you have to activate your left side, your left nostril, and for that you can always do Chandrabhed. मतलब बेसिकली आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कर सकते हैं एंड यू कैन कीप ब्रीदिंग. आप इस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट ले सकते हैं लेफ्ट साइड से. अगेन टू मेक श्योर यू आर इन अ वेरी perfectly quiet and supportive environment to be able to do this. You shouldn't have any commotion or a lot of people around you. It has to be done in a proper spacing with a proper sitting and a proper mudra technique and not just randomly anywhere. तो इतना आप कोशिश करिए. और ये भी बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि जब आप सही जगह बैठकर प्राणायाम या मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, it is also not something that you should do just randomly when you start doing it in office. You have to start your practice on mat at a place where you want to do it every day, a quiet space where you diligently properly offer yoga and yourself that time. It is like a prayer. It's a beautiful offering to yourself and to everything that is. So आपको इस टेक्निक को भी रिस्पेक्ट करना है. आपको इसे पहले अपने घर पे या फिर ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करना है. इसको एक ऐसे हैबिट और रूटीन में डालना है जहाँ पे आप शुरुआत करेंगे इस प्राणायाम की, मेडिटेशन की, योग आसन की. आपने इसे डेली लेवल पे एक जगह पे करना है और फिर ही आप इसको जो है ऑफिस वगैरह में करते हैं. अगर ऊपर नीचे शुरू करते हैं तो फिर वो ठीक रहेगा. अगर आपने शुरुआत ही ऑफिस से करी है तो उसका करेक्ट इफेक्ट आपको दिखने को नहीं मिलेगा. तो आपको शुरुआत में ऐसे हैबिट बनाकर आपको इधर से ही शुरू करना है. अच्छे से हैबिट बनानी होगी फिर ही होगा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू इट लाइक दैट. तो मैं अब आपको कुछ ऐसे आसन दिखाऊंगी जो आप अपने बैठे बैठे चेयर पे भी कर सकते हैं एंड उससे आपको मदद हो सकता है बहुत. अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप जो है बैठे बैठे थोड़ा मोबिलिटी और थोड़ी जो है अपने ही बॉडी को हेल्प कर सकते हैं. दैट यू कैन ट्राई. बट ऑब्वियसली इफ यू हैव अ स्पेस वेयरइन यू कैन सिट एंड गिव योरसेल्फ मोर टाइम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी वर्थ इट. तो अगर आप ऐसे बैठे हैं चेयर पे तो आप ऐसा जो है हमारा भद्रासन जो अपना होता है, जो तितली है पोज है या भद्रासन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं. या आप पद्मासन, सुखासन, ऐसे कोई मेडिटेटिव पोज में सिर्फ इससे बैठ सकते हैं सो दैट यू आर एबल टू सिट लॉन्गर. तो आप उसको पैरों को ऊपर रख के एक्चुअली कर सकते हैं और आप इस तरीके से भद्रासन में बैठ भी सकते हैं अगर आप चाहें. या फिर आप इस तरीके से बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं. इसके अलावा आप थोड़े से ऐसे ही हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इफ यू आर सिटिंग राइट नाउ ऑन अ चेयर यू कैन डू इट विद मी. तो आप इसको भी कर सकते हैं ऐसे 10 टाइम्स. आप इसी तरीके से 10 टाइम्स कर सकते हैं और दूसरे पैर पे भी आपका ऐसे हो जाएगा. अभी हम थोड़ा कम ही कर रहे हैं. वी आर डूइंग जस्ट 6 टाइम्स. इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं 10 टाइम्स. इट विल रियली हेल्प यू. यू विल सी दैट. ट्राई टू बी ऑन अ सीट. अगर आप इस तरीके से बैठे हैं जो टिल्टेड है तो फिर ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा. इनफैक्ट इट मे नॉट बी गुड ऑल्सो. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिट इन अ वे जिसमें आपकी बैक स्ट्रेट हो. आपकी हेड, नेक और बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसी चीजों में, वरना उसका ना इफेक्ट होगा और हो भी सकता है वो थोड़ा उसका बुरा साइड भी हो सकता है. सो आपको ये बात ध्यान रखना है. तो आप जो है सीट जो आपकी है वो आपको दिखनी है ना. इसके अलावा अगर आप के पास आप चेयर पे ही बैठे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं जो है गौमुख आसन. ये सब भी हम अभी जो है मैट पे भी आप मेरे साथ करेंगे. तो गौमुख के लिए आप वरना तो पैर इस तरीके से इंटरलॉक करके कर सकते हैं क्योंकि आप स्पेस के हिसाब से है ना. तो आप जो है गौमुख में ऐसे जो हमारा हाथ रहता है इस तरीके से आप रख सकते हैं
और फिर पैरों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं और हाथों को भी, और उसके बाद स्ट्रेट पीठ रखे सीधे देखते हुए या फिर कीप ब्रीदिंग, है ना। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब आप चेयर पे कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है हमारा जो आसन रहता है भुजंग आसन, या हमारे बहुत बैक बेंडिंग आसन है, तो अगर आप चेयर पे ही बैठे हैं तो आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं और अपना जो ब्रीदिंग है आपको वो चालू रहेगा। तो आप इस तरीके से इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू डू इट। एक बारी हम मैट पे भी ये चीजें कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास में वो स्पेसिंग है, यू कैन ऑलवेज डू त्रिकोणासन। त्रिकोणासन बहुत यूजफुल रहता है। तो अगर आपके पास में स्पेस है तो आप त्रिकोणासन कर सकते हैं। यू कैन नाउ डू इट वंस विद मी। तो हमारे पास काफी टाइप के वेरिएशंस हैं त्रिकोणासन में। यू कैन डू एनी ऑफ दीज। लेट्स डू वन ऑफ दैट विद मी राइट नाउ। तो आप पहले अपने राइट लेग को इस तरीके से राइट साइड पे रखेंगे, कीपिंग योर फीट 3 to 4 feet apart, and then bending your right knee, and इसके बाद आप जो है टर्न करेंगे एंड जो आपका लेफ्ट हैंड जाएगा वो राइट लेग के पास जाएगा और आप ऊपर देखते हुए ब्रीथ करेंगे। Now coming up, twisting your body, keeping your leg inside. इसके बाद आप जो है लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से करेंगे, कीपिंग योर लेफ्ट लेग आउट फेसिंग द लेफ्ट साइड, ट्विस्टिंग योर बॉडी, देन कीपिंग योर राइट लेग, राइट हैंड डाउन, एंड यू कैन बेंड योर नी और यू कैन इवन स्ट्रेटन योर नी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, एंड देन यू कैन लुक अप एंड कीप ब्रीदिंग। Then you can come up, turn, and आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्वियसली। फिर जो हमारा नॉर्मल त्रिकोणासन रहता है ये वाला, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये जो हमारा रहता है राइट। तो इन दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दैट। सो नाउ लेट्स डू गोमुखासन विद मी वंस। तो इसके लिए आप जो है पैरों के एक के ऊपर एक रखेंगे, है ना। तो अब हम सबसे पहले लेफ्ट को मोड़ेंगे, कीपिंग आवर लेफ्ट लेग बेंड एट द लेफ्ट नी। योर थाइज एंड योर काफ मसल्स टच ईच अदर। सिमिलरली योर राइट leg goes on top of your left leg, and here you will be keeping your left hand down, reaching out with your right hand up. Keep looking at the front, keeping your back and your whole body straight. Keep breathing. Now you can interchange your hands. आप हाथ को भी बदल सकते हैं और पैरों को भी बदल सकते हैं। So now keeping your right leg below your left leg, on top of your right leg, and changing your hands as well, and now looking at the front straight and keep breathing. कुछ इस तरीके से जाएगा आपका हाथ और पैर। I hope you're doing with me and you can do it properly, correctly. And इस तरीके से आप बैठ सकते हैं and you can practice more. इसी में जैसे हमने भद्रासन का बताया, ऊपर में अभी ऐसे बैठ के भी आपने इसी तरीके से कर लेना है। Again making sure your back is straight, है ना। फिर आपने इस तरीके से रखना है और आप फिर बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। लेट्स डू इट विद मी। And you can do it faster.
सो इसी तरीके से आप इसमें थोड़े वेरिएशन भी कर सकते हैं, लाइक आप झुक भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्पेस, आपके पास जैसी भी है आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फिर अगर आपके पास अगेन स्पेस एंड वो है तो जैसे हमने चेयर पे किया वैसे आपने ऐसे प्रेस किया और फिर उठा दिया, है ना। इसी को आप 10 टाइम कर सकते हैं मेरे साथ। Keeping your breath normal. ऐसे आप कर सकते हैं, आपको जितना हो और इसके रेपिटेशंस करना है, राइट। एक बार ही मेरे साथ में आप जो है इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं उष्ट्र आसन करूंगी, अगर आप उष्ट्र आसन कर सकते हैं तो इससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, वरना आप भुजंग आसन भी कर सकते हैं। भुजंग आसन का थोड़ा एक वेरिएशन होता है, तो उसमें आप अपने हाथों को पीछे ले जाके कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, या नॉर्मल भुजंगासन कर सकते हैं, उसके कोई वेरिएशन कर सकते हैं, या आप मेरे साथ में अभी जो है हम कैमल पोज करेंगे, उष्ट्रासन करेंगे, या आप चक्रासन है वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट विद मी वंस, कीपिंग योर लेग्स टुगेदर, योर नीज बेंट, एंड नाउ विद योर इनहेलेशन आप जो है पीछे जाएंगे। अगेन आपके लिए जो कंफर्टेबल, इफ यू वांट टू कीप योर फीट फ्लेक्स लाइक दिस और योर फीट फ्लैट, आप देख सकते हैं आपको जैसे भी जाना है, जिस तरीके से करना है। और फिर उसको आप वरना तो पूरे ऐसे जा सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ी वेरिएशन बताऊंगी, आप कुछ भी इसमें से कर सकते हैं। आप पूरा ना जाके इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे। तो आप इनमें से कोई भी जो है वेरिएशन या तरीके अपना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू हैव, द पीपल एंड एवरीथिंग। देख के आप ये फॉलो कर सकते हैं। I hope this helps, and I hope you can practice, and I hope you are practicing with me so that you can help yourself, and this will really change a lot. So thank you so much for joining. For consultations and getting more information, you can contact us in the below information that we've given. Thank you so much. Namaste.